مکہ سے میلوں دور ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے۔ اس غار کو غار ہرا کہا جاتا ہے۔ اس غار میں دنیا کا سب سے عجیب واقعہ پیش آیا جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوا۔ یہ داستان بہت عجیب ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وحی کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں، آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ آپ غار ہرا میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار ہرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ انہیں کھانا کھلاتے۔ غار ہرا میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے؟ روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ کی نبوت کے ذریعہ اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہونا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آئی ہے اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیات پڑھیں۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور ایسا ہے۔ جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی
जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिखती गई हो, यानी ये कलिमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रिवायात में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर उस शख्स को आप गार में नजर न आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ व क़ारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहां भी न मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गईं। वो अभी इसी परेशानी में थीं कि आप तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था उसकी तफसील सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्रील का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या उन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस उद्दूस, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो उसमें शक नहीं, उनके पास वही नामूसे अकबर यानी जिब्रील आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। उद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ ताज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्रील का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुठलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज आप लेकर आए हैं उसे लेकर जो भी आया उस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो जमाना पाया तो मैं जरूर आपकी पूरी मदद करूंगा। वर्का ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी कहा, तुम्हारे खावंद बेशक सच्चे हैं, दरहकीकत ये बातें नबूवत की इब्तदा हैं, ये इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन उसके कुछ ही मुद्दत बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया। उन्हें हुजून के मकाम पर दफन किया गया। चूंकि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया है, मैंने वर्का को जन्नत में देखा है। उनके जिस्म पर सुर्ख लिबास था। वर्का से मुलाकात के बाद आप घर तशरीफ ले आए। इसके बाद एक मुद्दत तक जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नहीं आए। दरमियान में जो वक्फा डाला गया उसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि आपके मुबारक दिल पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखकर जो खौफ पैदा हो गया था उसका असर ज़ाइल हो जाए और उनके ना आने की वजह से आपके दिल में वही का शौक पैदा हो जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद के बाद सिलसिला रुक जाने के बाद आपको सदमा हुआ। कई बार आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए ताकि खुद को वहां से गिरा कर खत्म कर दें, लेकिन जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करते, जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको पुकारते, ए मोहम्मद, आप हकीकत में अल्लाह ताला के रसूल है। ये कलिमात सुनकर आप सुकून महसूस करते, लेकिन जब फिर वही का वक्फा कुछ और गज जाता तो आप बेकरार हो जाते, रंज महसूस करते और इसी तरह पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते। चुनाचे फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आ जाते और आपको तसल्ली देते। आखिर दोबारा वही हुई। सूरह मुद्दस्सिर की पहली 3 आयात उतरी। तर्जुमा, ए कपड़े में लपेटने वाले उठो, यानी अपनी जगह से उठो और तैयार हो जाओ। फिर काफिरों को डराओ और फिर अपने रब की बड़ाइयां बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो।
इस तरह आपको नबूवत के साथ तबलीग का हुक्म दिया गया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहली खातून है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और अल्लाह की तरफ से जो कुछ हज़रत लेकर आए उसकी तस्दीक की। मुशरिकीन की तरफ से आपको जब भी तकलीफ पहुंची, सदमा पहुंचा, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको दिलासा दिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद दूसरे आदमी हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा हैं, जो आपके पुराने दोस्त थे। उन्होंने आपकी ज़बान से नबूवत मिलने का जिक्र सुनते ही फौरन आपकी तस्दीक की और ईमान ले आए। बच्चों में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हा हैं, जो आप पर पहले ईमान लाए, और उनके ईमान लाने का वाक़या कुछ इस तरह है। एक दिन आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ थीं और आप उनके साथ छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने ये नई बात देखकर पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो दीन है जिसको अल्लाह ताला अपने लिए पसंद फरमाया है और इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने पैगंबर भेजे हैं। मैं तुम्हें भी इस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लात और इज़्ज़ा की इबादत से रोकता हूँ। हज़रत अली ने यह सुनकर अर्ज़ किया, ये एक नई बात है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं अपने बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने वालिद से मशवरा कर लूँ। उनका जवाब सुनकर आपने इरशाद फरमाया, अली, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो भी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने वादा किया और इसका जिक्र किसी से ना किया। रात भर सोचते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत अता फरमाई। सवेरे आपकी खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हो गए। उलमा ने लिखा है, उस वक्त हज़रत अली की उम्र 8 साल के करीब थी। इससे पहले भी उन्होंने कभी बुतों की इबादत नहीं की थी। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उसके मुतल्लिक इस्तफसार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएं, लिहाजा उनका साथ ना छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है। अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैशी की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह अन्हु एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम करने से बहुत पहले मैं एक मर्तबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर इत्र खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्के में फ़रोख्त करते थे। मैं उनके साथ मनिया में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका तो उसने बहुत एहतमाम से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। उसने वज़ू किया और उस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खीमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। उसके बाद उन नौजवान ने रुकू किया तो उस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्न तालिब है, और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। ये अफीफ कंदी रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी मैं होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम थे,
शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने, ये भी सुन लें। जाहिलियत के ज़माने में उनकी वालिदा उन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थीं कि काफ़िला को लूट लिया गया। डाकू उनके बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी ले गए। फिर उन्हें अकाज़ के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को मेले में भेजा। वो एक ग़ुलाम खरीदना चाहती थीं। आप हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा की फूफी थीं। हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा मेले में आए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा को बकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ये अच्छे लगे, चुनाचे उन्होंने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए उन्हें खरीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी ये पसंद आए और उन्होंने उन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से उनकी तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा उन्हें लेने फ़ौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि ज़ैद उनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्जी। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तू आज़ादी के मुकाबले में ग़ुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हाँ, उनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनी तो आपको फ़ौरन हजर अस्वद के पास गए और ऐलान फरमाया, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चुनाचे वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। हज़रत ज़ैद वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है। ज़रा तसव्वुर करें, मक्का से 100 किलोमीटर दूर ताइफ की वादी है और इस वादी में लोग अपने हाथों में पत्थर लेकर खड़े हैं। इनके चेहरों पर गुस्सा है। इनके जवान लड़के किसी मासूम के इंतजार में हैं। आखिर इस दिन क्या हुआ था? आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम ये इंतहाई दर्दनाक दास्तान आपको सुनाएंगे। बचपन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और दादा की वफ़ात के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा जनाब अबू तालिब ने की। मगर नबूवत के 10वें साल चचा अबू तालिब और ज़ौजा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी वफ़ात हो गई। जब तक चचा जिंदा थे, कुरैश की जुर्रत नहीं थी कि वो आपकी तरफ बुरी नज़र से भी देखते। मगर जनाब अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश खुलकर सामने आ गए। एक रोज़ उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया। हर शख्स आपको अपनी तरफ खींचने लगा और कहने लगा, ये तो वही है जिसने हमारे इतने सारे माबूदों को छोड़कर एक माबूद बना लिया। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तड़प कर यकदम आगे आ गए। इस भीड़ में घुस गए। किसी को उन्होंने मार कर हटाया, किसी को धक्का दिया। वो उन लोगों को आपसे हटाते जाते और कहते जाते थे, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है? इस पर वो लोग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। होश आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम की। पता चला कि खैरियत से हैं तो अपनी तकलीफ को भूल गए। शव्वाल 10 नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। इस सफ़र में सिर्फ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे। ताइफ में सक़ीफ़ का कबीला आबाद था। आप ये अंदाज़ा करने के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए कि कबीला सक़ीफ़ के दिलों में भी इस्लाम के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। आप ये उम्मीद भी लेकर गए थे कि मुमकिन है ये लोग मुसलमान हो जाएं
اور آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد علیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ دینے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہے تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا بہت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہولہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہولہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدمعاشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی نصرانی غلام کو پکارا۔ اس کا نام اداس تھا۔ اداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ اداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ اداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوے کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوے کا نام سن کر آپ نے فرمایا، تم تو یونس کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ اداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوے سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے۔ اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی اداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر اداس ان کی طرف آیا اور تو ایک نے اس سے کہا،
तेरा नास हो, तुझे क्या हो गया था कि तू उसके हाथ और पैर छूने लगा था? इस पर उदास बोला, मेरे आका, इस शख्स से बेहतर इंसान पूरी जमीन पर नहीं हो सकता। इसने मुझे ऐसी बात बताई है जो कोई नबी बता सकता है। यह सुनकर उतबा ने फौरन कहा, तेरा बुरा हो, अपने दीन से हरगिज मत फिरना। इन उदास के बारे में आता है कि ये मुसलमान हो गए थे। उतबा और शेबा के बाग से निकलकर आप करने सालिब के मकाम पर पहुंचे। यहां पहुंचकर आपने सर उठाया तो एक बदली आप पर साया किए नजर आई। इस बदली में आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। पहाड़ों के फरिश्ते की बात के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे तवक्को है कि अल्लाह ताला उनकी औलाद में जरूर ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इस पर पहाड़ों के फरिश्ते ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में रऊफ और रहीम हैं, यानी बहुत माफ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। ताइफ के इसी सफर से वापसी पर 9 जिनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर हुआ। वो नसीबीन के रहने वाले थे। ये शाम के एक शहर का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात की आवाज़ सुनी तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। पहले वो यहूदी थे। ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया। इसके बाद घर तशरीफ ले गए। इधर 9 जिन जब अपनी कौम में गए तो उन्होंने बाकी जिनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। चुनाचे वो सब के सब मक्का पहुंचे। उन्होंने हुजून के मकाम पर कयाम किया और एक जिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरी कौम हुजून के मकाम पर ठहरी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किसी वक्त हुजून आएंगे। हुजून मक्का के एक कब्रिस्तान का नाम था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्ह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजून पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु के गिर्द एक खत खींच दिया और फरमाया, इससे बाहर मत निकलना। अगर तुमने दायरे से बाहर कदम रख दिया तो कयामत के दिन तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे और ना मैं तुम्हें देख सकूंगा। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया, मेरे आने तक तुम इसी जगह रहो। तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, ना किसी चीज को देखकर हौल महसूस होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फासले पर जाकर बैठ गए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल सियाह फाम लोग आए। ये काफी तादाद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूम करके टूटे पड़ रहे थे, यानी कुरान पाक सुनने की ख्वाहिश में एक दूसरे पर गिर रहे थे। इस मौके पर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने चाहा कि आगे बढ़कर उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटा दें, लेकिन फिर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ गया और वो अपनी जगह से ना हिले। इधर जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, यानी जहां हमें जाना है वो जगह दूर है, इसलिए हमारे और हमारी सवारियों के लिए सामान्य सफर का इंतजाम फरमा दीजिए। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जब तुम्हारे हाथों में पहुंचेगी तो पहले से ज्यादा पर गोश्त हो जाएगी और ये लीद और गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है। इस तरह जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तुफील बिन अम्र दूसी रजी अल्लाह अन्हु एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफील बिन अम्र दूसी रजी अल्लाह अन्हु से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान उस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शिराजा बिखेर कर रख दिया है, हम में फूट डाल दी है। इसकी बातों में जादू जैसा असर है। उसने 2 सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहक हो गई है। इसलिए अब आप ना तो उससे कोई बात करें और ना उसकी कोई बात सुने। उन्होंने उन पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा
और ना उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन तुफेल बिन अम्र दूसी रज़ी अल्लाह अन्हो काबा का तवाफ करने के लिए गए तो उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया कि कहीं उनकी कोई बात उनके कानों में ना पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनाचे उन्होंने एक निहायत पाकीज़ा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ, इसलिए उन साहब की बात सुन लेने में हरज ही किया है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूँगा और बुरी बात हुई तो छोड़ दूँगा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसीलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठूंस लिया था, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाए। कुरान सुनकर तुफेल बिन अम्र दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूँ। वो सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं वापस जाकर अपने कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें पानी के पास काफे खड़े नजर आए। ऐन उस वक्त उनकी दोनों आंखों के दरमियान चराग की मानिंद एक नूर पैदा हो गया और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। उस वक्त उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज में पैदा फरमा दे। मुझे डर है मेरी कौम के लोग ये ना कहने लगें कि दीन बदलने की वजह से उसकी शक्ल बिगड़ गई। चुनाचे इसी वक्त वो नूर उनके चेहरे से उनके कूड़े में आ गया। अब उनका कूड़ा किसी किंदील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हजरत तुफेल बिन अम्र दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु को जिन्नूर कहा जाने लगा, यानी नूर वाले। वो घर पहुंचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे पास ना आए, अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं और ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक रह गया है। ये सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, ये क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया। ये सुनते ही उनके वालिद बोल उठे, बेटे, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है। तब तुफैल बिन उम्र दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें गुस्ल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वो उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी उनके पास आई। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया। वो लोग बिगड़ गए। उनका ये हाल देखकर हजरत तुफैल बिन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हु फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, कौम दूस मुझ पर गालिब आ गई, इसलिए आप उनके लिए दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कौम दूस को हिदायत अता फरमा, उन्हें दीन की तरफ ले आ। हजरत तुफैल बिन उम्र दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु फिर अपने लोगों में गए। उन्होंने फिर दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। वो मुसलसल उन्हें तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। आखिर वो लोग ईमान ले आए। हजरत तुफैल बिन उम्र दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें साथ लेकर मदीना आए। उस वक्त तक ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक हो चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम पर मौजूद थे। हजरत तुफैल बिन उम्र दूसी के साथ 70-80 घरानों के लोग थे। उनमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, क्योंकि ये लोग वहां ग़ज़वा खैबर के वक्त पहुंचे थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के साथ उनका भी हिस्सा निकाला, अगरचे वो जंग में शरीक नहीं हुए थे। ताइफ के सफ़र के बाद मेराज का वाक़या पेश आया, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। दरअसल ये वाक़या ताइफ के सफ़र के बाद पेश आया, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये वाक़या इस तरह हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुअज़्ज़मा में हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहाँ से बर्राक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने आपकी इक़्तिदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ अहम तफसीलात ये हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचने से पहले हज़रत जिब्रील के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज़ इलाके से गुज़र हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लें। आपने बर्राक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया, नहीं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत गाह है, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहाँ आना है। इसके बाद बर्राक फिर रवाना हुआ। इसका हर कदम जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ पड़ता था। एक और मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने वहाँ भी 2 रकत अदा की। उन्होंने बताया, आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी मकाम पर क़याम किया था। इसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इसी बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप इसी बर्राक पर सवार हुए। एक मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आप 2 रकत नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैतुल लहम है। बैतुल लहम बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफ़र में आपने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के ज़रिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिए हैं। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप इस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबला में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, रहज़नी करने वाले, डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। अपने माल में ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके 70 पर आगे और पीछे फटे हुए चीथरे लटके हुए थे। वो ऊंटों और बकरियों की तरह चर रहे थे और ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे, या ये वो औरतें थीं जिनके खावंद थे लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थीं। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे
और पत्थर निगल रहे थे। आपको ऐसे आलमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वास किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी जबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था। यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल क़द्र अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। इससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जाम और कटोरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता होगा, न मुझसे बढ़कर या मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले, जिसके दिल में मेरा डर है उसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं उसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं उसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कुल और भरोसा करता है उसके जमा पूंजी को उसकी जरूरत के लिए पूरा करता रहूंगा। मैं ही सच्चा माबूद हूं, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वादा सच्चा है, गलत नहीं होता। मोमिन की निजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर मैंने कहा, बस ए मेरे परवरदिगार, मैं खुश और मुतमईन हूँ। दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप वादी में पहुंचे। वहां आपने एक बहुत बदनुमा आवाज सुनी। आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जबरील ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नम की आवाज है। ये कह रही है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नुम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदतीनत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नुम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफर में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। इसकी शक्ल अब्दुल उज़्ज़ी इब्ने क़तन जैसी थी। ये अब्दुल उज़्ज़ी जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले ही मर गया था। आपको वहां कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊंटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे। यानी इतने बड़े बड़े थे कि एक एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जबरील अलैहिस्सलाम ने पूछा, जबरील ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आपने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतें यानी बीवियां दे दी थीं, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। या वो ऐसी औरतें हैं जो अपने खावन को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थीं। आपने वहां ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये भी इसी तरह खाओ जिस तरह तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाजें कसा करते थे। जहन्नुम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहां मोतियों के बने हुए गुंबद देखे। वहां की मिट्टी मुश्क की थी
آپ نے जन्नत में अनार देखे, वो बड़े बड़े डूलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। इससे दो नहरें फूट रही थीं, एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आप फरमाते हैं, मैंने इस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। उनमें से एक नहर पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी नहर शराब की है। उसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्रील को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का किनारा छुप जाए। इन पुरों से रंगारंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया। आपको इसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्रील वही रह गए। बदली की जगह बाज रिवायात में एक सूरी के जरिए उठाने का जिक्र भी आया है। यहां आपने सरीर अकलाम यानी लौह महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाजें सुनी। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। इस तफसील से मालूम हो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए, और यह भी मालूम हुआ कि सदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। बाज उलमा ने लिखा है कि यह अर्श आज़म के दाएं तरफ है। एक रिवायत में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहां एक नहर पर पहुंचे। इसमें याकूतों, मोतियों और जबरजद के खैमे लगे थे। इस नहर में एक सब्ज रंग का परिंदा था। वो इस कदर हसीन था कि इस जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। आप फरमाते हैं, मैंने देखा इसमें याकूत और जमुरुद के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तीर रहे थे। इस नहर का पानी दूध से ज्यादा सफेद था। मैंने एक जाम उठाया, इस नहर से भर कर पिया तो वो शहद से ज्यादा मीठा और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। इसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहां खत्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ ले जाएं। आप फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा, यहां तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुंच गया। इस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा था। इसी वक्त मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ फरमा रहा है, आप सुनिए और इताअत कीजिए। आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा न हों। चुनांचे इस वक्त मैंने हक ताला की तारीफ बयान की। इसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ। मैं फौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी। वो ये थी, ए मोहम्मद, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे, इस वक्त तक तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हमने कौसर आपको अता फरमा दी है। इस तरह आपको ये खुसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। इसके बाद 50 नमाजें फ़र्ज हुईं। 50 नमाजें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरा से कम कराई गईं, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हर रोज़ ये 5 नमाजें हैं, उनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा, और इस तरह उन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स भी नेकी का इरादा करे और फिर ना कर सके, तो मैं इसके हक में सिर्फ इरादा करने पर एक नेकी लिखूंगा, और अगर इसने वो नेक अमल कर भी लिया तो इसे 10 नेकियों के बराबर लिखूंगा। और जो शख्स किसी बदी का इरादा करे और फिर उसको ना करे, तो भी इसके लिए एक नेकी लिख दूंगा, और अगर इसने वो बदी कर ली तो इसके नतीजे में एक बदी लिखूंगा। आप फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा, सदक़े का सिला 10 गुना है और कर्ज का सिला 18 गुना है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज के दौरान जहन्नम के दारोगा मालिक को देखा। वो इंतहाई सख्त तबीयत का फरिश्ता है। इसके चेहरा पर गुस्सा और गज़ब रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम किया।
दारोगा ने सलाम का जवाब दिया, खुशामदीद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला उसने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, मगर दारोगा जहन्नुम ने मुस्कुराकर बात नहीं की। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जहन्नम का दारोगा है, जब से पैदा हुआ है आज तक कभी नहीं हंसा। अगर ये हंस सकता तो सिर्फ आप ही के लिए हंसता। ये बात अच्छी तरह जान लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जागने की हालत में जिस्म और रूह दोनों के साथ हुई। बाज लोग मेराज को सिर्फ एक ख्वाब कहते हैं और बाज कहते हैं सिर्फ रूह गई थी, जिस्म साथ नहीं गया था। अगर ये दोनों बातें होती तो फिर मेराज के वाक़ये की भला क्या खुसूसियत थी। ख्वाब में तो आम आदमी भी बहुत कुछ देख लेता है। मेराज की असल खुसूसियत ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए। लिहाजा गुमराह लोगों के बहकावे में मत आएं। और फिर ये बात भी है कि अगर ये सिर्फ ख्वाब होता या मेराज सिर्फ रूह को होती तो मुशरिकीन मक्का मजाक ना उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया और मजाक भी उड़ाया। ख्वाब में देखे किसी वाक़े पर भला कोई क्यों मजाक उड़ाता। मेराज के बारे में इस मसले में भी इख्तलाफ पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं। इस बारे में दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं। इस मामले में बेहतर यह है कि हम खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ये हमारे एतकाद का मसला नहीं है, न हमसे क़यामत के दिन ये सवाल पूछा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जब अपने बिस्तर पर पहुंचे तो वो इसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़कर गए थे। यानी मेराज का ये अजीब वाक़या और इतना तवील सफ़र सिर्फ एक लम्हे में पूरा हो गया। यूं समझें कि अल्लाह ताला ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बायस ये मोजज़ा निहायत थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकत नमाज अदा करते थे और रात में क़याम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फ़र्ज़ नमाजों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। ये ज़ोहर की नमाज थी। इसी रोज़ इसका नाम ज़ोहर रखा गया, इसलिए कि यह पहली नमाज थी जिसकी कैफियत ज़ाहिर की गई थी। चूंकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसलिए यह भी हो सकता है ये नाम इस बुनियाद पर रखा गया हो। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकत की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकतों में आवाज से कुरत की गई, आखिरी रकत में कुरत बुलंद आवाज से नहीं की गई। इस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मुक्तदी भी थे और इमाम भी। इस तरह ये 5 नमाजें फ़र्ज हुईं और उनके पढ़ने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते नजर आते हैं, नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सरी गुमराही में मुब्तला हैं। नमाज का तरीका भी आसमान से ही नाजिल हुआ और हमें नमाज इसी तरह पढ़ना होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम पढ़ते रहे। ये भी साबित हो गया कि फ़र्ज नमाजें 5 हैं। हदीस के मुनकिर 5 नमाजों का इनकार करते हैं। वो सिर्फ 3 फ़र्ज नमाजों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र आया है, हालांकि अव्वल तो उनकी ये बात है ही झूठ। दूसरे ये कि जब अहादीस से 5 नमाजें साबित हैं तो किसी मुसलमान के लिए इनसे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
5 नमाजों की हिकमत के बारे में उलमा ने लिखा है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 5 हवास यानी 5 हिस्से रखी हैं। इंसान गुनाह भी इन्हीं हिस्सों के जरिए से करता है, यानी आंख, कान, नाक, मुंह, आज़ा और जवारे यानी हाथ पांव। लिहाजा नमाजें भी 5 मुकर्रर की गईं ताकि उन 5 हवासों के जरिए दिन और रात में जो गुनाह इंसान से हो जाएं वो उन 5 नमाजों के जरिए धुल जाएं। इसके अलावा भी बेशुमार हिकमतें हैं। ये भी याद रखें कि मेराज के वाक़े में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना साबित करता है कि आसमान हकीकत में मौजूद हैं। मौजूदा तरक्की याफ्ता साइंस का ये नज़रिया है कि आसमान का कोई वजूद नहीं, बल्कि ये कायनात एक अजीम खला है। इंसानी निगाह जहाँ तक जाकर रुक जाती है, वहाँ उस खला की मुख्तलिफ रोशनियों के पीछे एक नीलगों हद नजर आती है। इसी नीलगों हद को इंसान आसमान कहता है। लेकिन इस्लामी तालीम ने हमें बताया है कि आसमान मौजूद हैं और आसमान इसी तरतीब से मूव्ड हैं जो कुरान और हदीस ने बताई है। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में आसमान का जिक्र है। बाज़ आयात में 7 आसमान का जिक्र है, जिनसे मालूम होता है कि आसमान एक अटल हकीकत है, ना कि नजर का धोखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेराज का बयान तकमील को पहुंचा। इसके बाद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम में हम मेराज के बाद के वाक़यात बयान करेंगे इंशाअल्लाह।